Hello everyone, this is Govind sir. Today we are going to learn 11th standard physics chapter number 2, units and measurement. Whatever you have done in 10th standard was most of theoretical and very limited part was related to this numerical and all. But in 11th and 12th standard we will find out maximum things related to numerical and application based. So we need to focus more on the formulae and all, because if formulae and all are very clear to you all, then you can tackle with lots of things. So when we are talking about the units and measurement, so very first thing which is coming into consideration in this case is measurement. So to which thing we can measure? So that is the question. So things to which we can measure is called as quantity. Things to which we can measure is called as quantity, but there is a specific type of quantity. So since we are talking about the physics, so generally if you are talking about the quantity, there can be physical quantity, there can be chemical quantity, but we are going to continue with the physical quantity term. So if I am talking about the term physical quantity, so first we need to understand what do we mean by physical quantity. So physical quantity क्या होता है, that we need to see. So when we are talking about the physical quantity, so physical quantity is a quantity to which we can measure. Physical quantity is a quantity to which we can measure directly or indirectly. आप directly measure कर रहे हो या indirectly by calculation and all you are able to measure. So if you are able to measure, then that quantity is said to be physical quantity. Plus that quantity should follow laws of physics. So when I am talking about the physical quantity, so you can say quantity which can be measured, directly or indirectly, which can be measured directly or indirectly, and follows laws of physics. Such quantities are called as physical quantity. So directly in the sense आपने instrument use किया and directly you are getting answer या you are getting values, but there's a possibility you are using instrument, after that you need to do calculation, that is indirectly. So both condition, so whatever method you are following, if you are able to measure, that will be considered as a physical quantity. But there are certain quantity which you can't measure. Like the quantities when I am telling now, quantities in the sense, for example, you are saying there is a basically object which is very long, or you can say there is a pole which is very long, but how long, that is the question. So you need to measure. You can measure it. If you can measure it, that is a physical quantity. So you are saying there is one object which is very heavy. Object is very heavy in the sense, what will be the basically amount of heaviness, you can measure that. Suppose if you are saying a body is very hot, can you measure this degree of hotness and all in terms of temperature? So you can measure that. So that's again physical quantity. But अगर आप measure नहीं कर पा रहे हो तो physical quantity नहीं होगा. For example, like now today I am very sad. I am very sad in the sense आज मैं बहुत दुखी हूँ. मैं कितना दुखी हूँ? Can we measure? That you can't measure. So that can't be the physical quantity. Understood? So there are certain things which we are basically comparing in terms of now today it is more or less. Understood? But now that quantity you can't measure. So if you are not able to measure, that is not the part of physical quantity. So now we are going to focus more on the physical quantity. So when we are on the physical quantity, there are three types. When we are on the physical quantity, there are three types. So, and one more thing you need to understand in physical quantity, what do we need to express the physical quantity? So physical quantity को express करने हमें दो चीजों की requirement होती है. We need two things. So I am doing a physical quantity. And what do we need to express the physical quantity? That you see. So to express the physical quantity, we need two things. One is what? Number. Okay. And second is what? Unit. What do we call the number over here? यहाँ पे हम number को बोलेंगे magnitude. So we need magnitude and we need unit. So it's a magnitude and unit. Or you can say number and unit. So number का notation I'll take with capital N and unit का notation I'll take with U. So to express any physical quantity in terms of measurement, we need two things. One is the number and second is unit. So अभी हम देखते हैं कि किस तरह से number and unit will define a physical quantity or will give the information about a physical quantity. What if any one thing is missing, like unit is missing, only number is there, or if
unit is there and number is not given, then what will happen? So we'll see both the cases. So आप imagine करो किसी ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया, किसी क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन दिया कि like it is 1, 4, 8. So can you identify about which quantity they are talking? Will be very difficult. Why? Because we are having information about number. हमारे पास unit नहीं है, so we cannot identify the quantity properly. So to identify the quantity properly, we'll see the unit. So they have written 1 kg. So this is the number, now this is unit. So it is having a particular meaning. अब ये meaningful हो गया. So now you can identify the quantity. So they are talking about mass. So they are saying 4 ampere. Means they are talking about current. 8 degrees Celsius means they are talking about temperature. So as we are talking about the physical quantity, it can be measured and should follow the laws of physics. If you are able to measure, so there should be two conditions. One, there should be number and there should be unit. If any one thing is missing, you cannot define physical quantity completely. So completely define करने के लिए we need number and unit. Number is called as the magnitude. जब भी हम ना normally आगे बढ़ेंगे then we'll say ना magnitude is this much and unit is this much. So that you need to this is the unit and this is the magnitude. Magnitude basically represent number and unit you already know. So अब physical quantity के 3 types होते हैं. So what are the types of physical quantity? So that we'll see. So the first physical quantity is called as fundamental quantity. First physical quantity is called as fundamental quantity. ठीक है? So fundamental quantity के limitations है. So they are limited in number. So कितने fundamental quantities होते हैं? 7 fundamental quantities होते हैं. We'll discuss about that. And what is the fundamental quantity? We'll discuss about that also. And the second one is called as derived quantity. Second one is called as the derived quantity. Derived quantity. And what is the meaning? That again we'll discuss after some time. And next one is the supplementary. Actually में supplementary होता है ना, एक तरह से अगर आप देखोगे तो it's a fundamental quantity only. But for what reason is supplementary quantity that we'll mention. So if we are talking about the fundamental quantity, so fundamental quantity में ना there is a word funda. Fundamental. Funda in this is what? Funda or fundamental is what? Very basic. Means it's the beginning you can say. And everything will be dependent on that, or to get that particular quantity you don't need help of any other quantity. For example, आप imagine करो numbers. तो like ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are the fundamental numbers. So to get these fundamental numbers, we don't need help of any other number. So these are the fundamental, very basic. वो first time ही generate हुआ होगा, something like that. Like you consider the letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N. So those letters are again fundamental. मतलब उनके formation के लिए किसी को dependent नहीं होना है. So those are the fundamental letters. Those fundamental letters will form the words. Similarly, you can say K, K, G, G in Hindi. Those are the fundamental letters in Hindi. तो fundamental जो होता है ना वो first time form होता है. I mean that's a very basic. That will not depend on any other things for their measurement or for their formation. So when I am talking about the fundamental quantities, so fundamental quantities are those quantities which do not depend upon any other quantity for their measurement. मतलब if I have to measure fundamental quantity, directly you measure. आप directly measure करोगे value मिल गया. There's no need to apply any formula and all. So when I am talking about the fundamental quantity, when we are talking about the fundamental quantities that do not depend, quantities that do not depend on any other physical quantities. Other physical quantities for what? For their measurement. Other physical quantity for their measurement. So if you want to measure fundamental quantity, you don't have to take help of any other quantity for their measurement. So such quantities are called as fundamental quantity. So example के लिए अगर आपको लेना है तो there are 7 fundamental quantity, we'll discuss about it. But अभी के लिए हम क्या करते हैं, we'll see the example. तो जैसे लेंथ हो गया, लेंथ. तो अगर आपको लेंथ मेजर करना, आपने इंस्ट्रूमेंट दिया, डायरेक्टली लेंथ मेजर किया, that's enough. You got the value. There's no need to apply any formula and all.
सिमिलरली अगर आपको मास मेजर करना है, आपने जो भी सिस्टम पे रखा मास आपने ऑब्टेन किया, दैट इज डन, देयर इज नो नीड टू अप्लाई एनी फॉर्मूला। टाइम आपने देखा, आपको वैल्यू मिल गया, देयर इज नो नीड टू अप्लाई एनी फॉर्मूला। सो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। सो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। सो दे आर 7, तो 7 में से 3 मैंने यहां कवर कर लिया। सो हाउ आर वी गोइंग टू गो ऐड एंड ऑल दैट पार्ट आल्सो विल सी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज और क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। ये क्या होती है, ये बेसिक क्वांटिटी होती है। इस क्वांटिटी पे बाकी क्वांटिटीज डिपेंड हो सकती है, बट ये क्वांटिटी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। नाउ विल कम टू द सेकंड क्वांटिटी, दैट द डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड में ना वर्ड ही आप देख लो, डिराइव्ड मतलब इट इज ऑब्टेन फ्रॉम समवन। सो जनरली क्या होता है, इसके पहले ना 0 से 9 तक में तो नंबर वही फंडामेंटल नंबर है, तो अब बाकी नंबर्स इन्हीं पे डिपेंडेंट होगा। तो वैसे डिराइव जो होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर। तो क्वांटिटीज विच डिपेंड, quantities which depend on fundamental quantity for their measurement, so such quantities are called as derived quantity. Whatever definition I am giving, that is not a fixed definition. इसके अलावा भी बहुत सारे डेफिनेशंस हो गए, लाइक ना फंडामेंटल क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और इन अदर यूनिट सिस्टम। ऐसे भी डेफिनेशंस आपको मिल सकते हैं, बट दिस आर द सिंपलेस्ट वन टू अंडरस्टैंड। सो डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो आप कौन सा एग्जांपल ले लोगे, लाइक ना वेलोसिटी ले लो। वेलोसिटी के लिए क्या करना है, यू नीड टू हैव अ डिस्प्लेसमेंट, यू नीड टू हैव अ टाइम। अगर आप डिस्प्लेसमेंट आपके पास होगा, टाइम आपके पास होगा, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ ओनली, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का ही पार्ट है। टाइम इज अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी का पार्ट। तो सिमिलरली आपको अगर आपको फोर्स मेजर करना है, टू मेजर द फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को अगर हम और भी ब्रेक करते हैं तो यू विल फाइंड आउट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ यू डू द फोर्स, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। सो ऐसे बहुत सारे जितने भी फॉर्मूले आप लोगे वो किसमें आएंगे, डिराइव क्वांटिटी में आएंगे, एक्सेप्ट फ्यू फॉर्मूले। वो कहां पे होगा, क्या होगा, दैट ऑल्सो विल सी। जो लास्ट मैंने वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो दे फाउंड सम फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड नॉट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दे इन्वेंटेड, या उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर दैट दे ट्राई टू डिराइव obtain this derived quantity, and later after some years they found कि 2 और क्वांटिटीज है which are supposed to be the part of fundamental, बट कैसा है कि उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया था फंडामेंटल में 7 क्वांटिटीज होते हैं एंड डिराइव्ड विल डिपेंड ऑन दैट वन। तो अब जो नए 2 सिस्टम या जो नए क्वांटिटीज इन्वेंट हुए हैं उनको उन्होंने नए सिस्टम में ले लिया, तो दैट न्यू क्वांटिटी वाज कंसिडर्ड एज अ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इज द फंडामेंटल क्वांटिटी ओनली, बट विच कैन नॉट बी कवर्ड इन द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल। तो सप्लीमेंट्री कैसा होता है, जो इनकम्प्लीट वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी आपने प्रोवाइड किया होगा। सप्लीमेंट्री इन द सेंस द एडिशनल थिंग टू द मेन सपोर्ट। जो मेन चीजें है उसमें जो आपने एडिशनल चीजें दी है वो है सप्लीमेंट्री। तो ये जो मेन चीजें हैं इनमें हमने कुछ एडिशनल चीजें ऐड की है, दैट एडिशनल थिंग इज व्हाट, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी covered in fundamental quantity. So there's no need to define, just आपको ये समझना है कि fundamental quantities एक्चुअल में होते क्या, ये supplementary quantity एक्चुअल में होते क्या है। So when we are on the supplementary quantity, तो इसका एक एग्जांपल है प्लेन एंगल, है ना, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है कि लाइक आप जैसे नॉर्मल एंगल है तो एक लाइन हो गया, दूसरी लाइन ये हो गया, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस अगर आपने लिया, जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में जो स्पेस होगा, करेक्ट, तो ये एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच के स्पेस को यूज करते, तो ये प्लेन हो गया ना, दिस सरफेस। सो ये प्लेन के अंदर जो एंगल बना है ये हो गया प्लेन एंगल। एक और एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सो व्हाट इज द सॉलिड एंगल, दैट विल सी। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल इज लाइक ना, आप कोई ना कोन शेप चीजें ले लो, जैसे कोन अगर आप ले लेते हो तो कोन शेप इन द सेंस कि आप इमेजिन हो दिस द कोन शेप, ठीक है। इसको आप 3D में देखते हो तो मतलब ऐसा हो गया ना, देयर इज अ स्पेस इनसाइड, ठीक है। सो जैसे नॉर्मली अगर मुझे एंगल लेना तो ये एंगल हो गया, कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं कोन लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग कोन, तो कोन तो ऐसे होगा ना, यहां से ऐसा,
करेक्ट, आई विल टेक इनटू दिस 3 डायमेंशन जैसे आई एम कवरिंग द स्पेस। मैं सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस को यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आई एम यूजिंग ऑल डायमेंशन, एक्स वाई जो भी रहेगा, सो ऑल डायरेक्शन आई एम यूजिंग। तो 3D में मैं इसको मेजर कर रहा हूं, तो 3D में जो आप एंगल मेजर कर रहे हो मींस दिस एंगल, ये जो एंगल होता है इसी को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है। सो अब यहां पे क्या होगा कि हम इन चीजों को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप्स के होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज नथिंग बट द फंडामेंटल क्वांटिटी ओनली बट विच आर नॉट कवर्ड इन कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल। तो जो एक्स्ट्रा है वो हो गया प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये एग्जांपल है। तो जनरली आप कहीं पे भी स्टडी करोगे आपको सप्लीमेंट्री में ये 2 क्वांटिटी ही मिलेंगे एक्स्ट्रा में, दीज 2 क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री में 2 क्वांटिटी होगा, फंडामेंटल में 7 क्वांटिटी। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, मोस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव ऑलरेडी सीन। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को ना याद कराने के लिए जैसा आई टेल यू वन स्टोरी, हम एक स्टोरी से रिलेट करेंगे सो दैट इट विल बी इजियर टू मेमोराइज। इट्स नॉट लाइक ना कि आप स्टोरी से ही रिमेंबर करो उसको, समटाइम पीपल कैन मेमोराइज इट वेरी इजिली विदाउट एनी स्टोरी ऑल्सो। सो बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने यहां पे लिया क्वांटिटी, सो आई एम टेकिंग क्वांटिटी। सो यहां पे क्वांटिटी होगा, करेक्ट। आफ्टर क्वांटिटी आई एम गोइंग टू टेक दिस प्लेस यूनिट। सो कंप्लीट लेटर में आपको कंप्लीट वर्ड में लिखना है उसको, और वो यूनिट का सिंबल क्या होगा वो लिखना है, गॉट इट। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि क्वांटिटीज हमने कितना भी डिस्कस किया था, देयर आर 7 क्वांटिटीज। सो ये क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 क्वांटिटीज। सो अब पहले ना मैं स्टोरी बता देता हूं। स्टोरी ऐसा है ना कि देयर वाज अ गाय हु वाज 5 फीट टॉल, ठीक है। मे बी उसका एज रहा होगा 16, 17 समथिंग लाइक दैट, एंड वांटेड टू जॉइन आर्मी। उसको आर्मी ज्वाइन करना था एंड ही वाज वेरी डेस्परेट टू जॉइन आर्मी। सो वो क्या करता है, ही अप्लाइड फॉर आर्मी, उसका कॉल लेटर वगैरह आया जो भी रहा होगा, बट ही वाज रिजेक्टेड, ही वाज रिजेक्टेड। एज आई सेड ही वाज 5 फीट टॉल, तो 5 फीट टॉल है तो उसकी हाइट कम है, सो ही वाज रिजेक्टेड। तो फर्स्ट टाइम ही वाज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ हाइट। तो उस टर्म को हम ले लेते हैं लेंथ। तो जो पहली क्वांटिटी है वो लेंथ, वो किसकी वजह से रिजेक्ट हो गया, हाइट की वजह से, दैट इज लेंथ। फिर क्या होता है, ही केम बैक, ही स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज एंड ऑल, जो भी योगा वगैरह होता होगा एंड टू इंक्रीज द हाइट एंड ऑल। ही सर्च ऑन यूट्यूब, उसको कुछ रेमेडियल्स मिले होंगे कि ना टू इंक्रीज हाइट यू नीड टू डू दिस दैट। सो ही डिड दैट एक्टिविटी एंड ही फाउंड देयर इज अ पॉजिटिव रिजल्ट, ही हैड शोन ग्रोथ इन हिज हाइट। सो उसके बाद वापस उसने अप्लाई किया आर्मी के लिए, बट अगेन ही वॉज रिजेक्टेड। सो नाउ क्वेश्चन वॉज वाई। सो एक होता है ना हाइट और मास का रेशियो होता है, तो उस रेशियो के हिसाब से वो फिट नहीं हुआ कि उसका हाइट तो इंक्रीज हो गया बट मास के टर्म में वो क्या हो गया, फिट नहीं था। वेट जिसको बोलते हैं, तो वेट के टर्म में फिक्स वो फिट नहीं हो पा रहा था। तो क्या होगा, सेकेंड टाइम वो रिजेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ मास। फिर क्या होता है, ही केम बैक एंड स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बोथ, कि ना प्रॉपर हाइट के हिसाब से कितना मास होना चाहिए या कितना वेट होना चाहिए, ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट। बट व्हाट हैपेंड व्हेन ही अप्लाइड फॉर थर्ड टाइम, अगेन ही वाज रिजेक्टेड। व्हाई? सो द रीजन वाज एज लिमिट ही क्रॉस्ड। सो उसने एज लिमिट को क्रॉस कर दिया, ओवर एज यू कैन से। सो थर्ड टाइम ही वाज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ टाइम, दैट इज ओवर एज। सो टाइम की वजह से वो रिजेक्ट हो गया, गॉट इट। Now the fourth one, what happened? Since he was very desperate and his complete dedication was about to join army and all, but what happened? He failed into that. He got shocked. ठीक है, वो शॉकिंग मोमेंट था उसके लिए। तो प्रैक्टिकली वी गेट शॉक फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। तो ही वॉज शॉक और ही गॉट शॉक। सो बिकॉज ऑफ दैट, तो शॉक हमको प्रैक्टिकली मिलता है फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। सो ही गॉट शॉक, that is electric current. So अब अगर मान लो ना he was shocked and all, mentally he was not fit and he was very, you can say low. So अब अगर कोई shocked है या उसको बहुत ज्यादा टेंशन वगैरह आ गया, तो then he will not be well. So when he will not be well,
तो क्या हो गया, उसको फीवर आ गया। फीवर इज बेसिकली टेम्परेचर, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया ड्यू टू फीवर। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि जो ब्राइटनेस था फेस का वो डिक्रीज हो गया, तो उसका जो फेस था ना वो डल दिखने लगा, डल। सो ब्राइटनेस ऑफ द फेस डिक्रीज, दैट वाज ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द फेस डिक्रीज। ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसके फेस का डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, आफ्टर सम डेज ही रिकवर्ड, लाइक ना उसने अपने हेल्थ वगैरह को जो भी है मेडिसिन वगैरह लेके रिकवर किया, एंड ही स्टार्टेड मीटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड ऑल, कि ताकि उसका लाइफ नॉर्मल हो जाए। व्हेन ही वाज मीटिंग टू हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वर एबल टू आइडेंटिफाई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ही वाज नॉट वेल ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट इन हिज बॉडी। बहुत दुबला पतला हो गया था, ही वाज वेरी वीक। फिजिकली अपीयरेंस जब भी लोगों ने देखा तो दे फाउंड देयर वाज अ लेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन हिज बॉडी, मतलब पहले जैसा हट्टा कट्टा था अभी वैसा नहीं रह गया। तो लास्ट पॉइंट हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन हिज बॉडी डिक्रीज। तो जो सेवेंथ क्वांटिटी इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, सो हाउ मेनी क्वांटिटी वी आर हैविंग? 7 quantity. First he was rejected because of height, that is length. Second time he was rejected because of less weight, that is mass. Third time he was rejected because of overage time, he got shocked. So shocked in the sense electric current. Then he was not well and got fever, that is temperature. Brightness of the face decreased, luminous intensity, and then the amount of substance in the body decreased. दुबला पतला हो गया। So अब हम इनके यूनिट ले लेते हैं। तो यूनिट का क्या क्राइटेरिया है कि लेंथ का यूनिट, जब आप यूनिट लिखोगे ना तो यूनिट को कंप्लीट लेटर में लिखोगे। कंप्लीट लेटर में जब लिख रहे हो तो जो फर्स्ट लेटर होगा, सॉरी कंप्लीट लेटर इन द सेंस व्हेन यू आर राइटिंग इन कंप्लीट वर्ड, सो देन फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल लेटर। यू कैन नॉट राइट यूनिट इन कंप्लीट वर्ड विद कैपिटल लेटर, स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर। आपको स्मॉल लेटर से ही लिखना है फर्स्ट वन। तो केजी के लिए अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, किलोग्राम। फाइन, फिर अभी हम टाइम के लिख रहे हैं तो टाइम के लिए क्या हो गया, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या है, एम्पियर। करेक्ट, एम्पियर नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम है, फिर भी हमने नाम होने के बाद भी वी आर नॉट राइटिंग विद कैपिटल, वी आर राइटिंग विद अ स्मॉल लेटर ओनली, दैट्स अ रूल फॉर द यूनिट। एंड टेम्परेचर केल्विन, अगेन इट्स द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, है ना। अगर डार्क हो गया है तो आपको ब्राइटनेस जनरेट करनी है तो आप बोलोगे ना कैंडल ला, कैंडेला। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया, मोल। अब हम क्या करते हैं, उसका सिंबल, उसका मीटर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, किलोग्राम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्मॉल केजी, सेकेंड विल बी स्मॉल एस। अब क्या होता है ना, वी हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको क्या करना है, वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट। तो अगर आप साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देना चाहते हो या रिस्पेक्ट देना चाहते हो ना, यू हैव टू गिव अ रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट। तो हमें क्या करना है, व्हेन यू आर राइटिंग द सिंबल फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट, सो इफ इट इज रिलेटेड टू नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। तो हम क्या करते हैं, एम्पियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब हमको रिस्पेक्ट देना है तो रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल लेटर। सो ऑनर देने के लिए यू विल राइट विद कैपिटल लेटर। सो अभी हमको ऑनर देना है कैल्विन को भी, सो कैपिटल के। कैंडेला का क्या हो गया, CD, एंड दिस मोल इज व्हाट, MOL। ओके, एक और होता है ना डायमेंशनल सिंबल। ये एडिशनल टर्म है, ये आपको बाद में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, बट अभी जस्ट मैं लिख देता हूं सो दैट यू कैन यूज इट लेटर। डायमेंशनल सिंबल, तो डायमेंशनल सिंबल में क्या होगा कि लेंथ का जो डायमेंशनल सिंबल होगा वो होगा L, मास का जो डायमेंशनल सिंबल होगा वो होगा कैपिटल M, टाइम के लिए जो होगा कैपिटल T, करंट के लिए आप A यूज करोगे, कहीं कहीं पे आपको कैपिटल I भी मिलेगा। टेम्परेचर के लिए आप केल्विन K यूज करोगे, और थीटा भी लोग यूज करते हैं, बट अभी मैं K ही लिख रहा हूं। कैंडेला के लिए CD यूज करोगे, एंड मोल के लिए MOL। सो लाइक एज आई सेड कि नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर द फंडामेंटल नंबर्स, उनके ऊपर बाकी नंबर्स बेस्ड है। वैसे ही क्वांटिटीज में दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, सारे क्वांटिटीज इनके ऊपर बेस्ड है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एवरी टाइम ईच क्वांटिटी विल नॉट बी यूज्ड, है ना। हो सकता है शायद में सिर्फ लेंथ यूज हुआ होगा, हो सकता है सिर्फ मास यूज हुआ होगा, हो सकता है एनी 2 क्वांटिटीज आर यूज्ड, नॉट ऑल 7 क्वांटिटी विल बी यूज्ड एट अ टाइम।
in any quantity all 7 quantity will be used at a time, that is highly impossible. ऐसा कंडीशन कंपल्सरी नहीं है. If any quantity is used to derive a new quantity, then that quantity can be considered as a fundamental quantity. अब मैं यहां पे ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, बिकॉज डिराइव क्वांटिटी काफी लंबा ये कॉन्सेप्ट है. सो जस्ट आई रब दिस वन. आई होप यू पीपल हैव रिटन दिस वन. So when we are on the supplementary quantity, so supplementary quantity में we are having plane angle and then we are having solid angle. So this is about the supplementary quantity. ठीक है, ये just short term में मैंने नाम लिख दिया ये supplementary quantity. So I am taking quantity over here. Got it? Then this is what? Unit. और वो इसका सिंबल क्या होगा? So the first quantity we are having plane angle. Plane angle. Got it? So plane angle के लिए क्या कह रहे हैं ना? You imagine a circle. You imagine a circle. आप एक सर्कल इमेजिन कर लो, ठीक है? Then they are saying कि अब उस सर्कल के ना सेंटर को आप इमेजिन कर लो. तो दे आर सेइंग कि सेंटर से आपने क्या किया ना, एक आर्क आप लेते हो. यू टेक द आर्क, दिस इज द आर्क. अभी ये आर्क है ना हेल्प करता है टू फॉर्म दिस एंगल थीटा, और ये हो गया रेडियस आर. सो दिस एंगल कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्लेन एंगल. सो नॉर्मल कोई भी एंगल होगा ना, नॉर्मल एंगल ऑल्सो व्हिच यू हैव ड्रॉन अप टिल नाउ, like now when you are talking about this is the one line and this is the second line, this is the 90 degree. So this can be also plane angle. This is this what 30 degree. This is also plane angle. So just plane angle we are explaining in terms of circle, so that you can get the term arc. So अब क्या होता है, प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है ये होता है रेडियन. रेडियन इज यूनिट फॉर दिस, रेडियन. और उसका जो सिंबॉलिक वो होगा रेड. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस. ये आपने 9th या 10th में ज्योमेट्री में किया होगा, आई एम वेरी श्योर. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज सॉलिड एंगल. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस व्हेन वी आर ओवर द सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वह स्टे रेडियन, मीन्स इट्स रेडियन ओनली, बट उसमें थोड़ा सा एडिशन है, स्टे रेडियन. और इसका जो सिंबॉलिक होगा वो होगा एस आर. ओके, अब समझना है कि ये स्टे रेडियन एक्चुअल में क्या होता है. सो ये इस तरह से होगा, ये कोन है, ठीक है. सो कोन में आपने कंसिडर किया, तो कोन का अगर आप ये ले रहे हो तो कोन में कैसा होता है, यू कंसिडर नहीं, या मार्कर का भी अगर मैं कंसिडर करूं तो यहां पे ये ऑलमोस्ट कोन जैसा है. तो ये जो पूरा एंगल होगा यहां पे, वो एंगल को हम लेंगे सॉलिड एंगल. मींस दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी द सॉलिड एंगल. गॉट इट? सो ये हो गया हमारा सॉलिड एंगल का पार्ट, ये रेडियस हो गया, और दिस इज द सॉलिड एंगल. ओके, सो वी आर हैविंग टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वन प्लेन एंगल जिसका यूनिट रेडियन होगा, एंड द सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज व्हाट, सॉलिड एंगल जिसका यूनिट होगा स्टे रेडियन. अब हम आ जाते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट. सिस्टम ऑफ यूनिट इन द सेंस कि जैसे अभी हम ना मेजर कर रहे हैं, लाइक अगर मेरे पास लेंथ है तो लेंथ को मैं एक ही पैटर्न में मेजर करूं वैसा कंपल्सरी नहीं है. लाइक सेम लेंथ को आई कैन मेंशन इन एन नंबर ऑफ वेज. लाइक अगर समझो ये लेंथ है तो इसको मैं मेंशन कर सकता हूं कि ये 1 फीट होगा, ठीक है, या 1 फीट होगा, या जो भी वैल्यूज होगा. इसको मैं सेंटीमीटर में भी बता सकता हूं. दिस लेंथ को आई कैन टेल इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑल्सो, दिस वैल्यू को आई कैन टेल इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर ऑल्सो. सो बेसिकली बट द वैल्यूज जो होगा ना, मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट और नंबर विल बी डिफरेंट. दैट इज ओनली डिफरेंस. Number will be different, that is the only difference. Otherwise you can represent the same quantity in different system of unit. So system of unit, very important point. System of units. So अगर इस पे फोकस करते हैं तो जो सबसे पहला पार्ट होता है यहां पे कैसा, सी when we are on the system ऑफ यूनिट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड ना, यूनिट्स तो हर कंट्री का अपना अपना होता था, लेकिन हम ना पहले फोकस करेंगे कुछ
ऐसे यूनिट्स को ना जिसको इंटरनेशनली लोग एक्सेप्ट करते थे, समथिंग लाइक दैट, एंड विच वाज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ कंट्रीज एंड ऑल, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दोस थिंग्स। लाइक ना इंडिया का खुद का भी सिस्टम रहा होगा, सिमिलरली जो दूसरी कंट्रीज है उनका खुद का सिस्टम रहा होगा, बट दोज सिस्टम्स विच वे वेरी पॉपुलर एंड विच वे प्रैक्टिस बाय मोस्ट ऑफ कंट्रीज, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज सिस्टम्स। सो जो पहला जो सबसे पॉपुलर सिस्टम था एक्चुअली फ्रांस सिस्टम, तो इनका सिस्टम क्या था, दे वर यूजिंग सिस्टम विच वॉज कॉल्ड एज CGS system. So what was the CGS system? We'll come to that point. And the second one was the British system. So British system क्या होता था? That was the FPS system. Okay. And third one was French system. जो फ्रेंच सिस्टम था दैट वाज MKS system. So the most important thing which we need to notice in this case is they are basically representing three quantities. Three fundamental quantities को ये represent कर रहे हैं, length, mass and time. So when we are on the CGS system, it's mean that where C stands for centimeter, gram and second. Got it? So it is a system where length will be taken in terms of centimeter, mass will be taken in terms of gram and time will be taken in terms of seconds. So that system is called the CGS unit system. जब हम आते हैं सेकेंड सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम, so what happened in that case, where F was basically for the length, so that was foot, second one was pound, ये मास के लिए हो गया, and the third one was second. और MKS सिस्टम में क्या, MKS सिस्टम में M stands for meter, K stands for kilogram and S stands for second. Got it? So ये कंडीशन बहुत सिंपल है, but what happened, there was a basically conference. So ये कॉन्फ्रेंस का मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, it's a general conference of weights and measures. एक्चुअली ऐसा था ना कि ये जो फ्रेंच पीपल थे ना, ये उनके लीडर होते थे इस कॉन्फ्रेंस के, तो फ्रेंच पीपल वे लीडर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस. सो एक्चुअली दिस कॉन्फ्रेंस टुक फॉर एन नंबर ऑफ टाइम, बट ना अब जो नया सिस्टम आता है ना, दैट सिस्टम वाज बेसिकली दैट टाइम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड फॉर 11th टाइम, तो दैट वाज द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. ये 1960 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है. दैट टाइम दिस सिस्टम वाज रिमूव्ड, ये पूरे सिस्टम्स को रिमूव किया गया. क्यों रिमूव किया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर, लाइक ना France has done some measurement, British system, some measurement done, and French people also did some measurement. So what used to happen when they used to compare a particular quantity, or when used to represent a particular data or detail, so the people used to find कि most of time they are spending in just comparing. Like अगर ना कोई एक वैल्यू मेजर करने के लिए कॉन्फ्रेंस या इस एसोसिएशन ने टास्क दिया है कि ठीक है चलो आप ना इस ऑब्जेक्ट का मास डिटरमाइन करके आ जाओ. So what happened, they took their system and all, they did measurement. So these people use in centigram, then gram and second. These people use in foot, pound and seconds. These people use in meter, kilogram and seconds. And finally they found that when they were representing their values, there was a lots of conflict. It was very difficult to come to a particular conclusion. किसी एक conclusion पे आना बहुत difficult हो रहा था. And they wasted lots of time for that. So then in the 11th conference, they decided that now everybody is going to represent their detail or scientific detail internationally in one unit system. So what is the name of that system? So अब ये नया सिस्टम आ गया, जो आज भी हम इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं. तो उस सिस्टम का नाम क्या था? It was Systeme Internationale D-Unites. ओके, ये इंटरनेशनल सिस्टम था. तो यहां पे इनका फर्स्ट लेटर, ये फ्रेंच में बेसिकली स्टेटमेंट है या ये नाम है,
और इसी को शॉर्ट टर्म में बोलते हैं SI सिस्टम. And it was found SI system is very similar to or very close to MTS system, you can say, meter, kilogram and second. So whatever thing we wrote in a fundamental quantity, whatever we wrote in fundamental quantities, like 7 fundamental quantities, whatever unit and symbol we took, that was based on SI unit system. So this is universally accepted system. So whenever people are going to take their reading or whenever they are going to represent their thesis and all, their all details should be related to this unit system. तब वो internationally accept होगा. Otherwise will be very difficult. So आज हमने quantities discuss किया, fundamental quantity, derived quantity, supplementary quantities. Next class में we will cover with derived quantity because fundamental and supplementary का detail we discuss. And then we discuss about system of units. Just I'll mention one more thing. कि like system of unit में क्या होता है कि if you are having a quantity, like what is happening? I'm having number, then I'm having unit. Clear? But the problem is that suppose that I'm having this value in terms of MKS system, and I want to convert in terms of CGS unit system. Pattern will remain same. There will be number and there will be unit. So what will be changed? Like अगर यहाँ पे मैंने ना मीटर यूज किया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर यूज करूंगा तो यूनिट विल बी चेंज. तो ये U1 है तो ये U2 है. I'll mention that U1 and U2 are not same. Basically U1 and U2 will represent that these two are not the same thing. ये दो अलग thing हो गए. Means these two are different parameter. Like meter एक अलग calibration को यूज करेगा and centimeter will use the different calibration. Now we'll take the number. Like when you are talking the number, so when I'm saying ना 1 meter, ये क्या होगा 100 सेंटीमीटर. तो यूनिट अगर इनके ना डिफरेंट वे से रिलेट हो रहे हैं तो उनके नंबर भी क्या होंगे, डिफरेंट वे से रिलेट होंगे. तो यहाँ पे जो नंबर होगा यहाँ पे नंबर का सेम नहीं होगा. तो इट कैन बी रिटन एज N1 एंड दिस इज N2. सो यू कैन से इफ अ क्वांटिटी वी आर हैविंग इन वन सिस्टम, सेम क्वांटिटी इन अदर सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सो नंबर एंड द यूनिट विल नॉट बी सेम फॉर टू डिफरेंट यूनिट सिस्टम. लाइक फॉर same in the sense now, like if I am taking meter, that is the one unit system. If I am taking centimeter, that's another unit system. You take in that way. So like if I am writing 1 meter, so number is 1 and unit is meter. When I am writing into other unit system, that is 100 centimeter. So number is different and unit is also different. So that's why a quantity can be represented in terms of number and unit in different ways for the different system of unit. I hope whatever I explained up till now you people understood. Thank you very much. In next class, we are going to discuss about derived quantities. Once again, thank you very much.